हेलो टू ऑल। आज हम देखेंगे मशीनरी इक्विपमेंट एंड लिनन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। और हॉस्पिटल यूज़ जो मशीनरी इक्विपमेंट और लिनन होते हैं वो उनके टाइप और उनकी केयर कैसे की जाती हैं। तो उनमें क्या क्या देखते हैं हम। डिस्पोजेबल एंड रीयूजेबल लिनन, रबर गुड्स, ग्लासवेयर, मेटल्स, प्लास्टिक, फर्नीचर और मशीनरी आती हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। हॉस्पिटल नीड टू बी रेडी एट ऑल the items in order to provide comprehensive treatment for patient. This list of medical equipment provides as well as being allowing hospital to afford to carry research for this self-care equipment, electronic equipment, डायग्नोस्टिक, सर्जिकल, एक्यूट केयर, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। ठीक है। डिस्पोजेबल इक्विपमेंट जो आइटम एक बार यूज़ किए जाते हैं और डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं यूज़ के बाद, और जो न्यू आइटम होते हैं जो हर पेशेंट के लिए यूज़ होते हैं। रीयूजेबल इक्विपमेंट आइटम एंड इक्विपमेंट यूजेस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। दे आर क्लीन, डिसइंफेक्टेड, क्लोरीन वाटर में डिसइंफेक्ट करते हैं एंड स्टेरिलाइज बिफोर एंड आफ्टर ईच यूज़। मोर केयर शुड बी गिवन टू रीयूजेबल आइटम देन डिस्पोजेबल आइटम। दैट मीन्स आज हम यहाँ पर लिनेन, रबर और ये सारे जितने टाइप्स हैं वो उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो इक्विपमेंट है उनका पर्पस होता है कि केयर प्रोवाइड कराना और किन किन पर्पस के लिए दिए जाते हैं, और ये क्या होते हैं, डिस्पोजेबल इक्विपमेंट क्या होते हैं और रीयूजेबल इक्विपमेंट क्या होते हैं। ठीक है। जैसे सबसे फर्स्ट है केयर ऑफ लिनन। तो लिनन की केयर कैसे करनी है। लिनन मैनेजमेंट प्ले अ ग्रेट रोल इन पेशेंट सेटिस्फेक्शन, रिड्यूस इन्फेक्शन रेट and operation costs and play important role in physician satisfaction. Efficient supply of linen without an effect and delay in time become a good support toward delivering quality healthcare service to the patient. ठीक है। If the hospital does not have proper chain of linen, this may lead to the delay in OT and ICU procedure. Patient care suffices, delay in CSSD operation, ultimately the entire hospital operation suffers. ठीक है। अब लिनन की केयर कैसे करनी है। The linen cupboard should be kept in perfect order. The cupboard should be locked when not in use. Care should be taken to avoid linen being take home by the patient. ठीक है। पेशेंट के द्वारा नहीं ले जाना चाहिए। स्टॉक पूरा होना चाहिए लिनेन का। ठीक है। ऑल आइटम शुड बी यूज फॉर पर्पस फॉर विच दे वेयर मेड। मतलब ये लिनेन जैसे जिस पर्पस के लिए बनाया गया है तो वो उसी के लिए यूज़ होना चाहिए। टॉर्न लिनेन शुड नॉट बी यूज्ड ऑन द बेड but sent for mending. Soiled linen should not use in place of the floor. Damp linen should be dried immediately. If soiled with urine or motion, should be drying with cold water. The infected linen should be disinfected first. Use Macintosh where able it is necessary to economized the use of linen. Type of linen: blanket, pillow cover, bed sheet, patient gown, surgical gown, curtain, apron, doormat, hot water bag, cover, and other cloth item. Cleaning and care of linen: follow hospital policy for maintenance of linen. Store the clean and unused linen in cupboard and maintain stock register. Fold and keep different linen short out in cupboard. Send indent timely to keep extra linen at hand. Always maintain laundry record register. Regularly inspect and send for linen for repair to prevent further damage. Regularly send to the dirty linen to laundry for washing and iron. Dust the mattress with dry damp cloth. Bedsheet Macintosh can be protected from stain, soil by drying Macintosh. Always use Macintosh over top linen while doing any therapeutic or diagnostic procedure. Try to clean the fresh stain immediately with solvent.
It is the importance of keeping clean hospital linen to the client family member. Contaminated linen. Always use laundry box, hamper, trolley for putting contaminated linen. It should not be put on floor as it will cause more contamination. लिनन को 0.5% सॉल्यूशन जो होता है क्लोरीन का उसमें डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। वाटर से वॉश करना है, ऑटोक्लेविंग के लिए भेजना है। उसके बाद देखते हैं रबर गुड्स जो आर्टिकल्स होते हैं उनकी केयर कैसे करना है। तो उनको इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए, आर्टिकल्स को क्लीन रखने के लिए और उनकी लाइफ प्रिजर्व रखने के लिए केयर करनी है। डिफरेंट रबर गुड्स आइटम क्या होते हैं जो हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते हैं, जैसे मैकिंटॉश, रबर ट्यूब, हॉट वाटर बॉटल, ठीक है, आइस पैक्स, आइस कॉलर, ग्लव्स, माउथ पीस, पीलो और फिर ब्रेस्ट पंप, ये सारी चीज़ें जो होती हैं रबर गुड्स की बनी होती हैं। कैसे करना है रबर गुड्स की केयर। रबर गुड्स गेट डिस्ट्रॉय विथ हीट। डू नॉट यूज़ हॉट वाटर टू क्लीन ठीक है, सनलाइट फॉर ड्राइंग इट और कीप नियर रेडिएशन। रेडिएशन में रख सकते हैं, सनलाइट में रख सकते हैं, पर हीट में नहीं रखना है। हार्ड रबर ट्यूब एंड कैथेटर कैन बी बॉयल। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। रबर फॉर क्लीनिंग। डू नॉट फोल्ड रबर सीट। डू नॉट रिस्ट्रिक्ट पिन ऑन रबर गुड आइटम में, मतलब उन्हें फोल्ड नहीं करना है और उनमें कोई लीकेज ना हो, ऐसा कुछ हार्ड मटेरियल जैसे पिन्स वगैरह से अलग रखना है। सबसे पहले उन्हें ड्राई करना है, उसके बाद क्लीन करना है। डो नॉट यूज़ क्लैम्प फॉर लॉन्गर पीरियडिक रबर ट्यूब कैथेटर। उसके बाद जो रबर ग्लव्स आइटम होते हैं उनको कैसे केयर करना है, जैसे डिकंटामिनेट करना है, फिर वॉश करना है, फिर कोई होल वगैरह तो नहीं है उस चीज़ के लिए देखना है, फिर उन्हें ड्राई करना है। फिर जो टेलकम पाउडर होता है उसमें ड्राई ग्लव्स को रखना है और फिर पेपर में पैक करके रखना है। आफ्टर पुटिंग इन ड्रम सेंड टू ऑटोक्लेव, फिर ऑटोक्लेव के लिए भेजना है। स्टरलाइजेशन करना है, ऑटोक्लेविंग और केमिकल स्टरलाइजेशन। उसके बाद देखते हैं क्या प्रिंसिपल होता है केयर का। एक्सपोजर ऑफ हीट, लाइट, मॉइस्चर एंड बाय केमिकल्स, दे नॉट बी फोल्डेड, अवॉइड एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। रबर गुड शुड नेवर बी ड्राइड बाय आर्टिफिशियल हीट, नॉट कॉन्टेक्ट बाय रेडिएशन। मतलब देखो हीट वाली कोई भी चीज़ में एक्सपोजर नहीं करना है, जैसे सनलाइट, रेडिएशन वगैरह हो गया उसके लिए, ठीक है। जो रबर आर्टिकल होते हैं उनको यूज़ करने के बाद केयर कैसे करनी है। देखते हैं ग्लास इक्विपमेंट जिनमें आएंगी सिरिंज, टेस्ट ट्यूब, फनल, स्लाइड, स्पेसिमेन बॉटल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब इनकी केयर कैसे करना है ग्लास आइटम की। इनको डिसइंफेक्ट करने के लिए 5% क्लोरीन सॉल्यूशन में रखना है 5 मिनट के लिए, ठीक है। और फिर माइल्ड सोप वाटर्स में से क्लीन करना है और ट्यूब वगैरह को, जार को ब्रश से क्लीन करना है। प्रोसीजर फॉर इट्स केयर एंड क्लींजिंग is same as discussed earlier. Immerse item in chemical disinfectant for 5 minutes, then wipe it and dry. If the item is soiled or very much contaminated, must be discarded in a yellow bag. Suction machine care. सक्शन मशीन की केयर कैसे कर सकते हैं वो चीज़ दिया हुआ है, तो एज ए स्टेप बाय स्टेप हमको केयर करनी है सक्शन मशीन की। फिर केयर ऑफ रेफ्रिजरेटर की केयर करने के लिए पहले उसे खाली करना है मंथ में 2 बार। इफ़ गेट सॉइल्ड मस्ट बी क्लीन इमीडिएटली। डिस्कार्ड अनसेड ब्लड सैंपल, एक्सपायर ब्लड प्रोडक्ट, ओपन मेडिकेशन। डू नॉट कीप ईडेबल इन, मतलब खाने वाली चीज़ें नहीं रखनी है, क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटल में जो रेफ्रिजरेटर है वहाँ पर ब्लड सैंपल वगैरह पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं। लेबल क्लाइंट नेम, अगर ऐसे पर्टिकुलर चीज़ें रखी हुई हैं तो लेबल करके रखनी है। इंश्योर वर्किंग कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेटर। फिर आता फर्नीचर जो हॉस्पिटल में यूज़ करे जाते हैं, जिसमें क्या आते हैं 2 चीज़ें, वुडन की बनी हुई है फर्नीचर और मेटल के बनी हुई है फर्नीचर। तो उनकी केयर और मेंटेनेंस कैसे करना है वो चीज़ दिया हुआ है।
हम देखते हैं इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री इज अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल अवेलेबल इन वार्ड, देयर कैरेक्टरिस्टिक स्टैंडर्ड नंबर, इट इज़ रिकॉर्ड ऑफ आर्टिकल अवेलेबल इन द वार्ड। ठीक है, इन्वेंट्री क्या हुई, रिकॉर्ड होता है जो भी हॉस्पिटल में सामान रखी हुई है। और इंडेंट भी वैसे ही एक लिस्ट होती है आइटम की जो कि वार्ड को दी गई है। इम्पोर्टेंस क्या होगी फर्नीचर को मेंटेन करने की। मेंटेन फॉर फर्नीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिजर्व इट्स मैक्सिमम यूजफुलनेस। Clean and stain-free furniture enhance, give aesthetic sense to client. Cleaning of furniture, especially in hospital, prevent cross-infection. It help in prolong life of furniture. Finally, it provide favorable environment for the recovery of the client. आज की वीडियो में हमने देखा मशीनरी, लिनन और जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी केयर कैसे करनी है, फर्नीचर और इन्वेंट्री क्या होते हैं, उनका मेंटेनेंस कैसे करना है। पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ प्रोवाइडिंग नर्सिंग नोट्स टू नर्सिंग स्टूडेंट्स। मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। थैंक यू।